ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ হৰত কেনেকৈ বিদ্ধ হ'ল মোদী আৰু শ্বাহ। মোদী শ্বাহে মৰণপণ যুঁজ দিও কিয় কৰিব নোৱাৰিলে শেষ ৰক্ষা। কেনেকৈ অথলে গ'ল মোদীৰ বজৰংবলী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি। কেনেকৈ বুমেৰাং হ'ল অমিত শ্বাহৰ ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতি। কেনেকৈ বিজেপিক ঘুটে ঘুটে পানী খুৱালে কংগ্ৰেছে। সিদ্ধাৰামায়াই আৰু শিৱকুমাৰে কেনেকৈ ভেটিলে বিজেপিৰ আগ্ৰাসন। অৱশেষত পূৰ্বে ধাৰণা কৰা মতেই কৰ্ণাটকত বিধ্বস্ত হ'ল শাসকীয় বিজেপি। প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাতকৈ অধিক আসনত জয়লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছে। 224খন আসন বিশিষ্ট কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 135খন আসন লাভ কৰি কংগ্ৰেছে কেৱল জয়লাভ কৰাই নহয়, গংগাটোপ হৈ থকা বিজেপিৰ দম্ভ আৰু অহংকাৰকো চূৰ্ণ কৰি পেলালে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ এই বিশাল বিজয়ে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। বিজেপিৰ অতি সাম্প্ৰদায়িক, মিথ্যাচাৰী, ধনবলী আৰু বাহুবলী ৰাজনীতিক দেশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ সপোন সাকাৰ হ'ব বুলি পতিয়ন গৈছে দেশৰ বিৰোধী শক্তিসকল। পিছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মনত বাৰে বাৰে একেটাই প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। ধনবল, বাহুবল আৰু ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰপাগণ্ডা সৃষ্টি কৰিও কৰ্ণাটকত কেনেকৈ ৰণত পৰিল অতি আগ্ৰাসী বিজেপি। কেনেকৈ এই নিৰংকুশ বিজয় সম্ভৱ কৰি তুলিলে কংগ্ৰেছে। কেৱল ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বলতে জয়ী হ'ল নেকি কংগ্ৰেছ। বিজেপিৰ পতনত সিদ্ধাৰামায়া আৰু শিৱকুমাৰৰ ভূমিকা কি আছিল। মোদী শ্বাহে মৰণপণ যুঁজ দিও কেনেকৈ পৰাস্ত হ'ল বিজেপি। উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটকত ক্ষমতাৰ ৰক্ষাৰ বাবে শাসকীয় বিজেপিয়ে মৰণপণ যুঁজ দিছিল। এই যুদ্ধৰ মূল সেনাপতি আছিল স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। লগতে পালি সেনাপতিৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল হিন্দুত্বৰ নতুন পোষ্টাৰ বয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ কি কৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰ্ণাটকৰ জনতাৰ মৌলিক সমস্যাৰ কথা বাদ দি কেৱল প্ৰপাগণ্ডা সৃষ্টিৰ মত্ত আছিল মোদী, শ্বাহ, হিমন্তৰ লগতে বিজেপিৰ নেতাসকল। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী সভাত কি কৈছিল মোদী, শ্বাহ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰ্ণাটকবাসীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনৰ গান্ধী পৰিয়ালক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। কংগ্ৰেছক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল বুলি আক্ৰমণ কৰি অহাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে নতুন কথা নহয়। বজৰংবলী শ্লোগানেৰে ক্ষমতা দখলৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কংগ্ৰেছে মুঠ 92 বাৰ তেওঁক গালি পৰাৰ অভিযোগ আছিল মোদীৰ। কৰ্ণাটকৰ বুনিয়াদী সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰু কি কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है। संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया। कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया। कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य
भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो, कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে। কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত ধ্বংস হ'ব কৰ্ণাটক। ৰাহুল গান্ধীয়ে দাড়ি কটাক লৈ কটাক্ষ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ভাষণবাজি কৰাৰ লগতে ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতিও আৰম্ভ কৰিছিল। দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হৈও অমিত শ্বাহে কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কৈছিল, ৰাজ্যখনত ক্ষমতালৈ আহিলে কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰি কৰ্ণাটক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাব। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापस लाओगे तो किसका कम करोगे? वोकलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे, या ओबीसी का कम करोगे? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को एक बच्चे की तरह गोदी में सहला रही थी, क्योंकि उनकी वोट बैंक थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर दिया और एक कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। उस वक्त ये जेडीएस, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट, ये सारे काउ 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 ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে উন্নয়ন বিকাশৰ কথা কোৱাতকৈ বিজেপিৰ নিউ পোষ্টাৰ বয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাই তোলাৰ লগতে কেৱল ৰাহুল গান্ধীকে আক্ৰমণ কৰি থাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰা দেখা গ'ল। ৰাহুল গান্ধীক ব্যক্তিগত জীৱনক লৈও সন্মান হানিকাৰক মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। प्रियंका गांधी यहाँ आके रो रहा है, बोला है हमारा सरकार आने से हम 13% मुसलमान रिजर्वेशन करेगा। मैं प्रियंका जी को बोलना चाहता हूँ, आप 10 बार जन्म लीजिए, कर्नाटक में आके और कभी भी आप मुसलमान का नाम में रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा। सबको ये मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेस आज देश का गद्दार पीएफआई जैसा शक्तियों का साथ मिल चुका है और हमें ये कांग्रेस को शिक्षा देना है। भाई और बहनों, मैं जब कर्नाटक में आया, कुछ प्रेस का लोग मुझको मिला,
बोला कांग्रेस को गारंटी दे रहा है। मैं बोला कांग्रेस बाटा कंपनी है क्या गारंटी दे रहा है? बोले मैं गारंटी दे रहा है। मैं बोला कांग्रेस आज 75 साल देश को गारंटी दिया, देश का कोई उन्नति हुआ? जब तक मोदी जी नहीं आया था कुछ भी नाम काम नहीं हुआ था। आज देखिए इतना बढ़िया लाइट लग रहा है, किसके लिए? हमारा भाई के लिए। सबको ये मालूम होना चाहिए ये कांग्रेस आज देश का गद्दार पीएफआई जैसा शक्तियों का साथ मिल चुका है और हमें ये कांग्रेस को शिक्षा देना है। भाई और बहनों, मैं जब कर्नाटक में आया कुछ प्रेस का लोग मुझको मिला, बोला कांग्रेस को गारंटी दे रहा है। मैं बोला कांग्रेस बाटा कंपनी है क्या गारंटी दे रहा है? बोले मैं गारंटी दे रहा है। मैं बोला कांग्रेस आज 75 साल देश को गारंटी दिया, देश का कोई उन्नति हुआ? जब तक मोदी जी नहीं आया था कुछ भी नाम काम नहीं हुआ था। आज देखिए इतना बढ़िया लाइट लग रहा है, किसके लिए? हमारा भाई के लिए। आज कांग्रेस का गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है। मैं वो प्रेस का पत्रकार को बोला, क्या राहुल जी कर्नाटक को क्या गारंटी देगा? पहले राहुल जी खुद का गारंटी खुद ले ले, ये भी बहुत बड़ा बात है। आप राहुल जी को देखा होगा, एक दिन दाढ़ी बना लेगा, दूसरा दिन सेव कर लेगा, एक दिन दिल्ली में रहेगा, दूसरा दिन फॉरेन में चला जाएगा, एक दिन एमपी है, दूसरा दिन एमपी नहीं है, एक दिन उत्तर प्रदेश में है, एक दिन केरला में है। जो अपना ठिकाना नहीं है, खुद का गारंटी नहीं है, उनका माँ दिन भर उनका चिंता करता है और वो आगे बोलता है मैं कर्नाटक का गारंटी दूंगा। आप देखिए कर्नाटक भारत का आईटी इंडस्ट्री में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर में नंबर 1 है, स्पिरिचुअलिज्म में नंबर 1 है, बायोटेक्नोलॉजी का नंबर 1 है। राहुल जी आप कर्नाटक को गारंटी मत दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बनाना है। भाई और बहनों, आप मुसलमान महिलाओं को देखो, बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक मेल, एक पुरुष क्यों साल बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है और मुसलमान व्यक्ति साल बार शादी करने का जो सिस्टम है इसको बंद करना है। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मेसिन नहीं। इफाले कर्नाटकर राज्यिक कांग्रेस नेता तथा प्राक्तन मुख्यमंत्री सिद्धारामाया और प्रदेश कांग्रेसर सभापति शिव कुमार सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधीये जनतार मौलिक प्रश्नबोर उत्थापन करे। कर्नाटकत सिद्धारामाया और शिव कुमारे रचिছিল বিজেপি বধৰ ভেটি। সেই ভেটিতে বিজেপিৰ কৌশল বানচাল কৰে ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ জনতাৰ দুখত নাকান্দে, কংগ্ৰেছে গালি পৰাৰ দুখত জনতাৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি ভূত ভিক্ষা কৰে। ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেশবাসীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰাৰ বিপৰীতে কেৱল ধৰ্ম আৰু জাত পাতৰ নামত জনতাক মূৰ্খ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। প্ৰিয়ংকাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয়, কৰ্ণাটকত যদি সন্ত্ৰাস হৈছে সেয়া হৈছে মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সন্ত্ৰাস, বিজেপিৰ 40% চৰকাৰৰহে সন্ত্ৰাস চলি আহিছে। কৰ্ণাটকত জনতাই ভোগ কৰি অহা সীমাহীন সমস্যাহে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार
जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड। ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका से। राजनीति यहाँ चल रही है पूरे देश में कि काम कोई नहीं कर रहा है, दूसरों के काम पर अपना नाम डाला जा रहा है। चुनाव के समय आपकी बातों को करने के बजाय दुनिया भर की बातें चल रही हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको गुमराह किया जाता है, आपके जज्बातों को उभारा जाता है ताकि आपका वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, और उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद फिर से आपके जज्बातों पर वोट मांगेंगे, अपने काम पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास पर वोट नहीं मांगेंगे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। मुठৰ ওপৰত কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত বিভিন্ন কূটকৌশল কৰি ব্যৰ্থ হ'ল বিজেপি। প্ৰপাগণ্ডা সৃষ্টি, ধৰ্মীয় বিভাজন, সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ আৰু তুষ্টিকৰণ, কংগ্ৰেছক গালি পাৰিও শেষ ৰক্ষা নহ'ল বিজেপিৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে কৰ্ণাটকৰ জনতাৰ বুনিয়াদী বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰি ক্ষমতালৈ আহিল কংগ্ৰেছ। এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে যে দেশত প্ৰপাগণ্ডা সৃষ্টি, ধৰ্মীয় বিভাজন, সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ আৰু তুষ্টিকৰণেৰে নিৰ্বাচনী ৰঞ্জিকা কৌশল ক্ৰমশ ব্যৰ্থ হোৱাৰ দিশে। 2024তো বিজেপিৰ এই ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক কৌশলক জনতাই প্ৰত্যাখ্যান কৰিব বুলি দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত এতিয়া চৰ্চা চলিবলৈ ধৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।